Hello students, welcome to all of you on YouTube channel PMIC Lakpeda Bharamiki. Myself Sasank Tripathi. I am going to teach you today second lesson of English literature prose A Letter to God. ईश्वर के नाम एक पत्र. Written by J.L. Frounce. J.L. Frounce has written this lesson, who is about a hard-working farmer, Lencho. Lencho was a very hard-working farmer. He worked hard in his fields and he has faith in God. जैसा कि आपने टाइटल देखा, A Letter to God. He has written a letter to God. Why? Because he had a lot of faith in God. So he wrote a letter to God in his bad conditions. In this lesson, we see that Lencho had faced natural disasters like hailstorm, heavy rainfall, and his all crops were totally destroyed by those conditions. Bearing those problems, and when he found himself very unsupportful, he thought to write a letter to God to solve his problem and send him money. During this lesson, we will see that Lencho had been shown here with a lot of faith, and the money which he wanted from God was handed pesos to live until new crops come. What he get and who gave him money, that everything we will read in this chapter. Now we start line to line explanation of the lesson A Letter to God. The house, the only one in the entire world. The house. Article the is mentioned before house. Why? Because house was the only one. वहाँ पर और कोई घर नहीं था जहाँ पर उसका कोई घर बना हुआ था, पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी पर. इसीलिए वहाँ पर उस हाउस को इंडिकेट करते हुए वहाँ पर और कोई घर नहीं था, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. संपूर्ण घाटी में ओनली वन, अकेला वह घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप, टॉप ऑफ द हिल. CREST, क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ द हिल. स्थित था छोटी पहाड़ी, कम ऊंची पहाड़ी के टॉप पर. फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से जहां पर उसका घर स्थित था, मान लीजिए लेंचो का घर था, ये था पहाड़ियों पर. तो जो पहाड़ियों पर उसका घर था वहां से कोई भी देख सकता था द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. नदी को, खेतों को, पके हुए अनाज के खेतों को, जिसमें कि थोड़ी थोड़ी दूर पर फूल लगे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो कि हमेशा वादा करते थे एक अच्छी फसल का. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a down
थोड़ी वर्षा और या फिर बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, लेंचो who knew his fields intimately मीन्स होता है घनिष्ठता पूर्वक, वेरी क्लोजली, who knew about his field very closely, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. उसने कुछ नहीं किया, केवल नॉर्थ ईस्ट के स्काई को देखता रहा। Now we are really going to get some water, woman. अपनी स्त्री से कहा, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। मतलब कि उससे अंदाजा हुआ कि अब वो कहीं पर बारिश होने वाली है। The woman who was preparing supper replied, जो कि भोजन का बनाने में लगी हुई थी औरत, महिला, वह बोले, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर जाने। The older boys were working in the field. बड़े बच्चे जो उसके थे खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास टहल रहे थे, खेल रहे थे। Until the woman called to them out. जब तक कि औरत ने उन सबको अंदर नहीं बुलाया। Come for dinner. भोजन के लिए, रात्रि के भोजन के लिए अंदर आओ। It was during the meal. भोजन के समय के दौरान की बात है। Just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी। Foretell. Big drops of rain began to fall. बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। In the north east, उत्तर पूर्व के दिशा में, huge mountains of clouds could be seen approaching. बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। The air was fresh and sweet. हवा ताजी और मधुर थी। Sweet means feeling good. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो और किसी कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वह उस बारिश का आनंद अपने शरीर पर ले सके, फील कर सके, उसको घर से बाहर निकल पड़ा। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम, वह चीख पड़ा, These are not raindrops falling. यह बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। From the sky, आसमान से। They are new coins. यह नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces. बड़े बूंदें जो हैं वो 10 सेंट के पीसेज हैं। And the little ones are 5. और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं, 5 cent pieces. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. उसने अंदाजा लगाया अनाज के खेतों का संतुष्टि के भाव के साथ, उनके फूलों के साथ। Wrapped in a curtain of rain, जो कि बारिश की चादर को ओढ़े हुए थे। लेकिन suddenly a strong wind began to blow. अचानक एक तेज हवा वहाँ पर चलने लगी। And along with the rain, और उसी बारिश के साथ, very large hailstones began to fall. बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। These truly did resemble new silver coins. अब ये बूंदें वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह दिख रही थी। The boys exposing themselves to the rain, बच्चों ने अपने आप को बारिश में भिगोना शुरू कर दिया। Ran out to collect the frozen pearls, और उन जो जमी हुई बारिश की बूंदें थी, जो पत्थर गिर रहे थे, उनको उठाना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। It's really getting bad now.
एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो चिल्लाया, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जो बारिश थी देर तक लगी रही, वापस नहीं गई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले उस घर पर गिरते रहे, बगीचे में गिरते रहे, पर्वत के चारों ओर गिरते रहे, कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों पर गिरते रहे, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी पर गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद, जैसे कि नमक से उनको ढक दिया गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो लेंचो की फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो भी जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजरा, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों का जो झुंड होता है वो भी इससे कहीं अधिक छोड़ देता है। The hail has left nothing, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल अनाज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने आज 4 पैराग्राफ पढ़े, उनको आप पढ़ेंगे, उनके कंप्रीहेंशन करेंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन contact me personally